Good morning, all of you. So, in the previous class, we were discussed about the what it called neural control and coordination. In the neural control and coordination chapter, we were discussed about the nerve impulse conduction and the function of the nerves, how the impulse will be conducted in the neuron. So now we will go further. In the nervous system, majorly the nervous system which is present in our body, human nervous system, which may be divided into three types. That is nothing but three what it called regions. That is nothing but we already know that we will discuss it: central nervous system, peripheral nervous system, and what it called somatic nervous system. Okay, so that the particular central nervous system, peripheral nervous system, somatic nervous system. So in this the particular what it called somatic nervous system and autonomous nervous system, which will become in the what it called peripheral nervous system, I told in the last class. So in that, first we discussed about the central nervous system. So the central nervous system which is there, it is the particular system which consisting of the majorly brain and spinal cord. It's consisting of brain and spinal cord. So in this brain and spinal cord, majorly the brain is the central information processing organ. Majorly it will be useful for what? Information processing. Means whatever the particular type of characters, whatever the particular type of behavior, or whatever the information we have taken, that information, the central information processing organ, it will be what it called as brain. So here, this particular type of brain, which may be what it called, for example, if you are taking any sense, that sense will be what it called information processing occur by brain only. Then it acts as a command and control system. So command and control system is nothing but which may useful for the particular type of command on a particular characteristic features or organs or structures in our body, and they will be together control the particular characters. Then it controls voluntary movements, balance of the body. So voluntary movements are nothing but voluntary movement of the organs. Like for example, we are moving our hands, we are moving our body parts. So voluntarily what the particular organs are moved, so that voluntary movements are also controlled by brain only. Then after that, balance of the body. So when we are walking, when we are sleeping, when we are doing any work, so if we don't want to fall down, so that balance is depend upon which one? The particular brain. So the balance is controlled by the brain only. And functioning of vital involuntary organs, means vital involuntary organs are nothing but the particular important involuntary organs, means internally what the particular organs are present. अभी बोलते क्या है यहाँ पे कि ये involuntary organs बोलते which are not under control of our own will. So that organs are what it called under control by brain only. Like for example, lungs, kidneys, heart. For example, lungs, respiration, what we do, so that respiration, and the kidney which is useful for filtering of the urine, and the heart which is useful for pumping of the blood. ये तीनों के लिए क्या होता है बोलो तो ये इनवॉलंटरी फंक्शंस जो होता है, इनवॉलंटरी ऑर्गन जो होता है वो ब्रेन के अंडर कंट्रोल होता है. एंड थर्मोरेगुलेशन means to maintain our body temperature, to maintain our body what it called temperature, so that is also under control of brain. And hunger, so what we are doing, अपने भूख लगता है अपने को, so वो भी क्या है तो ये ब्रेन के अंडर कंट्रोल में रहता है. एंड एज वेल एज थर्स्ट, मतलब अपने को प्यास लगता है वो भी. Then circadian rhythms, it is very important. Circadian rhythms are nothing but the particular rhythms, like for example 24-hour cycle और वेकअप साइकिल. फॉर एग्जांपल सुबह अपन क्या होते हैं तो मॉर्निंग 6 o'clock में तो 5 o'clock अपन उठते हैं. सो विदाउट कोई भी नहीं बोले अपन उठते हैं. सो वैसा अपन समझो रात को 8-9 बजे खाना खा लिए सो जाते हैं. तो वैसा क्या होता है अपने बॉडी में प्रॉपर साइक्लेशन, जैसा कि वो उठना सोना जो प्रॉपर टाइम में काम करना, सो वो रिदम्स क्या बोलते हैं तो सर्काडियन रिदम्स बोल के बोला जाता है. सो वो अपने बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ये ब्रेन यूज होता है. एंड एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सो द पर्टिकुलर ग्लैंड्स लाइक व्हाट इट कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, and at same time other endocrine glands which are there. So how they have to release the hormones, तो कौन सा टाइम है कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, सो उसका पूरा एक्टिविटी भी किसके अंडर कंट्रोल में रहता है तो ब्रेन में. एंड as well as human behavior, so how we are behaving, how we are what called continuing, how we are
व्हाट इट कॉल मतलब कैसे दूसरों से अपन बिहेव कर रहा है वो भी किसके ऊपर बोलो तो ये ब्रेन के अंदर में रहता है। सो ऐसा क्या हो तो थोड़े फंक्शंस अपने देख सकते हैं ब्रेन के बारे में। सो बाकी के नेक्स्ट अपन देखेंगे। So here human behavior. So the behavior of us means how we are behaving according to the conditions, that is also depend upon which one brain, under control of brain. So next we go for. So it is also the also for the which one processing of vision. Okay, it is also useful for the which one processing of vision, means how what we are looking. सो व्हाट वी आर लुकिंग हियर मतलब अपन क्या देख रहा है, कैसा देख रहा है, वो विजन कैसा है। सो विजन भी ब्रेन के अंदर कंट्रोल में रहता है। और हियरिंग क्या सुन रहा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है, सो वो भी। एंड स्पीच मीन्स क्या बोल रहे हैं अपन। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस वी कैन स्पीक, सो दैट स्पीच आल्सो डिपेंड अपॉन विच वन कंट्रोल ऑफ ब्रेन। एंड सेम टाइम मेमोरी, सो व्हाट टाइप ऑफ हाउ द मेमोरी इज प्रेजेंट इन अस, मतलब कितना अपने को मेमोरी रहता है, वो मेमोरी भी कौन सा तो ब्रेन के अंदर रहता है। इंटेलिजेंस, हाउ मच यू आर इंटेलिजेंट, मतलब अपना इंटेलिजेंस क्या है, आईक्यू लेवल्स क्या है, वो भी ब्रेन के अंदर में रहता है ना, तो ब्रेन के अंदर। And at the same time the intelligence and same time emotions and thoughts means how the emotions are present for us, वो तो अपन कौन से सिचुएशन में कैसे फील हो रहा है, सो अपना इमोशंस कैसे अपन यूज़ कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सो वो भी क्या होता है तो ये इमोशंस एंड थॉट्स एंड व्हाट वी आर थिंकिंग, मतलब कैसा अपन सोच रहा है, अपना सोच कैसा है, मतलब इन विच कंडीशन व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स वी हैव। So that is all. But the brain, it is a particular master mind, master controlling center. So which will be useful for all the characteristic feature, all the behavioral and everything will be under control of which one brain only. So that's why the brain is an important control and command center of our body, we can say. मतलब वो क्या है करते हैं बोले तो ब्रेन मतलब अपने बॉडी में कौन सा भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने दो, बिहेवियर होने दो, इंटेलिजेंस होने दो, थॉट्स होने दो, कुछ भी होने दो, वो ब्रेन के अंडर कंट्रोल में रहता है। और यहाँ पे अपन देखेंगे, सो अभी इंट्रोडक्शन में अपन देखें कि ब्रेन का थोड़ा फंक्शंस, वाइटल फंक्शंस क्या क्या होता है। एंड उसके बाद अपन देखेंगे ब्रेन के बारे में। सो ब्रेन में सबसे पहले द कवरिंग ऑफ द ब्रेन। कवरिंग ऑफ द ब्रेन मीन्स हाउ द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। इससे पहले अपन कहाँ पे बोलते हो, डाइजेस्ट सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, हर एक सिस्टम में अपन पढ़े कि दैट वाइटल ऑर्गन्स आर कवर्ड बाय सम लेयर व्हिच वी कॉल्ड एज पेरिटोनियम बोल के ऐसा पढ़े थे अपन। सो पेरिटोनियम क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर ऑर्गन को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। वैसा ही ब्रेन में क्या होता है बोले तो वो अपने उनको भी कवरिंग होना चाहिए। वो क्या होता है तो मेजरली इन ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल मेजरली। वो तो अपने ये स्कल जो है तो अपने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, प्रीवियस चैप्टर में सी जैसे कि द स्कल, सो दैट इज इट इज प्रेजेंट इन द वेल स्केलेटल सिस्टम, इन द एक्सियल स्केलेटल वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सो दिस इज द बोनी व्हाट इट कॉल्ड व्हाट केज और बोनी कवरिंग। So that particular human brain is well protected by the skull. So inside the skull, the brain is covered by cranial meninges. अभी ये क्या है बोलते हैं, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये एक फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पे स्कल ऐसा है, ओके ना, ये स्कल के अंदर क्या बोलते हो ऐसा ब्रेन है। So you are looking about this imagination. So यहाँ पे ये इमेजिनेशन जैसा मैं आपको ड्रॉ किया था, सो इट्स नॉट देयर बट विल डू दैट। सो यहाँ पे ये स्कल है, बाहर से ये बॉडी एलिवेशन है, बॉडी स्ट्रक्चर है, ओके ना। तो उसके अंदर क्या होता है बोल तो ये पर्टिकुलर क्या बोला जाता है, ब्रेन उसमें कवर होके रहता है। so जैसा कि अपन स्कल को यहाँ पे बोल सकता है बोल क्या बोलते हैं बोल तो ब्रेन बॉक्स बोल के भी बोल सकता है, व्हाट इट कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। सो ये ब्रेन बॉक्स के अंदर क्या होता है तो ब्रेन क्या होता है कवर होके रहता है स्कल के अंदर, बट ये स्कल को और ये ब्रेन को बीच में क्या होता है तो यहाँ पे ये लेयर्स रहता है ऐसा। सो ये 3 लेयर्स यहाँ पे अपने को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आउटर रेड कलर का एक लेयर दिया था और बीच में एक व्हाइट कलर का और अंदर और एक रेड कलर का, ये 3 लेयर आप देखें तो सो उसको क्या बोलते हैं तो क्रेनियल मेनिंजेस बोल के बोला जाता है। So these cranial meninges which are there, so these are consisting the
आउटर लेयर विच इज कॉल्ड एज आउटर लेयर, तो बाहर का लेयर जो होता है उसको ड्यूरा मैटर बोलते हैं। सो ये जो बाहर का आपने को दिखा जा रहा है, सो इसको क्या बोलते हैं बोलते हो आउटर ड्यूरा मैटर बोल के यहाँ पे बोला जा सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पे अपन देखें तो सो मिडिल जो होता है उसको क्या बोलते हैं बोलते हो अरेक्नॉइड मैटर बोल के बोला जाता है बेटा। सो दे वेरी थिन, देयर इज नथिंग बट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिडिल लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज what the particular arachnoid matter बोल के बोला जाता है। एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एज what pia matter. So it is very thin one. So generally this is I drawn it with a chart piece, but it is very thin layer. So यहाँ पे एक बार देखिए outer dura, I'm sorry, so middle arachnoid matter and inner pia matter. This ऐसा thin layers होता है। जैसा कि वो क्या होता है, this is called as the covering of brain which are called as cranial meninges बोल के यहाँ पे बोला जा सकता है। ये cranial meninges which are there, so these are consisting of outer dura matter, middle arachnoid matter and inner layer which is called as pia matter बोल के यहाँ पे बोला जाता है। pia matter बोल के बोलता है, जैसा कि dura, arachnoid and pia matter बोल के बोला जाता है। ये तीन भी कवरिंग क्या होता है तो ब्रेन को कवर करके रहता है। जैसा कि बताइए तो ये क्या बोला था मैं आपको, स्कल बोल के बोला गया था। सो ये स्कल के नीचे और ब्रेन के ऊपर, मतलब these are present between the skull and brain. So these three meninges which are there, they are useful for the protecting of the brain मेजरली। वो तो कौन सा भी प्रेशर उनके ऊपर नहीं होने के लिए और एट द सेम टाइम उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए क्या होता है तो यहाँ पे ये मेनिंजेस अपने को यूज होता है, विच आर कॉल्ड एज क्रेनियल मेनिंजेस बोल के बोला जाता है। तो उसके बाद ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखें तो सो द ब्रेन विच इज देयर मेजरली इट इज डिवाइडेड इनटू, सो द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू लाइक फॉर एग्जांपल वी ऑलरेडी नो दैट, अपन इससे पहले अपन पढ़े थे कि और एक बार यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे फोर ब्रेन बोल के बोला जाता है और मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। यहाँ पे एक बार पिक्चर में आप देख सकते हैं। सो ये सेरिब्रम जो होता है, सो दिस इज द कॉइलिंग स्ट्रक्चर विच में बी ऑकर, सो दिस वन विच इज देयर, सो इट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम एंड हियर द मिडिल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज थैलेमस एंड द लोअर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। सो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों को मिलके क्या बोलते हैं तो यहाँ पे फोर ब्रेन बोल के बोला जा सकता है बेटा। एंड एट सेम टाइम द पर्टिकुलर मिडिल रीजन, दिस मिडिल रीजन व्हिच इज देयर, सो दिस इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन बोल के बोला जा सकता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं ये सेरिब्रम जैसा ही ये नीचे ऐसा ये कॉइलिंग सेंटर ऐसे दिखा जाता है आपको, इसको क्या बोलता है वो तो सेरिबेलम बोल के बोला जाता है। ये सेरिबेलम एंड ये पॉन्स एंड ये मेडुला, ये तीनों को मिलके क्या बोलते हैं यहाँ पे हिंड ब्रेन बोल के यहाँ पे बोला जाता है। जैसा कि ये क्या है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन and at the same time hind brain. So forebrain consisting of cerebrum, thalamus, hypothalamus, midbrain consisting of what it called the particular type of crura cerebral. Sorry, these are consisting of what the midbrain middle region, and hindbrain consisting of pons varoli, cerebellum and medulla oblongata. These three are present. So further, so we will discuss about the complete structure of the brain. So here. We have discussed about that the forebrain, midbrain and hindbrain, three regions are there. So in that first we go for the forebrain. So forebrain में अपन देखें तो इसमें तीन regions रहते हैं, it consisting of cerebrum, thalamus and hypothalamus. But actually it is about NCERT. So along with that I already told you, मैं आपको इससे पहले क्लास में बताया कि ये cerebrum, thalamus, hypothalamus में सेरिब्रम के साथ साथ और एक यहाँ पे एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लीजिए यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स बोल के ये भी अपने को ब्रेन में दिखाया जाता है। ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपीथैलेमस, थ्री रीजन्स। अभी ये रीजन अपन यहाँ पे लिए तो फॉर एग्जांपल अपने को दिखाया जाता है ये ऐसा, ये रीजन ऐसा दिखाया जाता है। तो इसमें ये क्या होता है वो तो एपीथैलेमस बोल के बोला जाता है, ये मिडिल रीजन को थैलेमस बोल के बोला जाता है और ये इनर रीजन को हाइपोथैलेमस बोल के बोला जाता है। जैसा कि ये जनरली यहाँ पे मैं बताया थैलेमस और हाइपोथैलेमस ही बोल के, पर ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस के साथ साथ अपने को दिखाया जा सकता है क्या बोल तो एपी बोल के, और दिस इज अ एक्स्ट्रा पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड एज एपीथैलेमस बोल के अपन बोला जा सकता है। जैसा क्या है एपीथैलेमस, दिस इज थैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस।
तो ऐसा 3 रीजन्स अपने को दिखाया जाता है। सो ऐसा ब्रेन में अपन देखें तो क्या है, इट कंसिस्टिंग ऑफ सेरिब्रम and olfactory lobe. This is also one point is there, so which may useful for sensing of smell. Then after that thalamus, hypothalamus. ये thalamus hypothalamus के साथ साथ मैं आपको बताया था क्या बोल के एपिथैलेमस भी रहता है, बट this point is not given in our NCERT. So ये thalamus hypothalamus and epithalamus, यहाँ पे मैं वो लिख रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए। ये एपिथैलेमस, थैलेमस, ये तीनों को अपन बोल सकता है डायनसेफेलॉन बोल के यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ये थोड़ा आप कंसिडर कीजिए। सो ओनली एज पर एनसीईआरटी सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ही है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे एपिथैलेमस भी आपको दिखाया जा सकता है। ये तीनों पार्ट को मिलकर अपन बोल सकता है डायनसेफेलॉन बोल के। और ये सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन के साथ साथ ऑल्फैक्टरी लोब्स भी रहता है, which useful for sensing of smell. ओके ना, सेंसिंग ऑफ स्मेल के लिए यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स यहाँ पे यूज हुआ जाता है। जैसा अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े थे कि एक ऑल्फैक्टरी ट्रैक, जैसे मैं आपको नोज के स्ट्रक्चर बोले जब आपको बताया था कि इसमें ये 2 ट्रैक जैसा डिवाइड होता है। सो इसमें क्या बोलते हो, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, कंडक्टिंग ट्रैक, एंड ये क्या बोलता मैं बोलता हूँ ऑल्फैक्टरी ट्रैक बोल के बोला था। सो ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक कहाँ जाता है बोलते हो, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स को जाता है। सो ये किसके लिए बोलते हो, सेंसिंग ऑफ स्मेल के लिए यहाँ पे यूज हुआ जाता है। सो वो भी अपने को कहाँ बोलते हो, ये फोरब्रेन का स्ट्रक्चर में आ जाता है बेटा। सो ऐसा forebrain consists of cerebrum, thalamus, hypothalamus as per NCERT, but along with that the thalamus, hypothalamus also consisting of epithalamus, which is together called as diencephalon. So along with that olfactory lobe are present. Then the particular what is called called cerebrum. You can see the cerebrum. ये cerebrum के बारे में यहाँ पे देखें तो so the cerebrum which is there, it will form the particular major part of the brain. So majorly forebrain which is form the major part of the brain. So forebrain which consisting of what, cerebrum majorly first of all. Here the particular cerebrum which is there, a deep cleft, जैसा कि अपन देखें ये सिंगल साइड के स्ट्रक्चर है। मैं आपको इससे पहले क्लास में बताया था ये ऐसा सेरेब्रम रहता है। सो ये दिस इज कॉल्ड एज सेरेब्रम, ऐसा आपको दिखा जा सकता है। ये सेरेब्रम क्या होता है तो दोनों लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रम जैसा डिवाइड होता है। तो ये दोनों डिवाइड करने के लिए एक स्मॉल क्लेफ्ट रहता है। यहाँ पे देखिए कि डीप क्लेफ्ट विच डिवाइड्स द सेरेब्रम लॉन्जिट्यूडिनली इनटू 2 halves. That is what, longitudinally into 2 halves which are termed as, उनको क्या बोला जाता है बोल तो लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोल के बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखें तो दिस इज अ सेरेब्रम, आपको दिख रहा है ये सेरेब्रम है। ये सेरेब्रम क्या होता है बोलो तो ऐसा डिवाइड होता है, एक क्लिफ, एक लॉन्जिट्यूडिनल क्लेफ्ट ऐसा रहता है। सो ये क्लेफ्ट क्या करता है बोलो तो ये सेरेब्रम को लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स बोल के दिखाया जाता है। वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जैसा डिवाइड होता है। सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट इट कॉल्ड हेमिस्फीयर्स, तो ये दोनों हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कार्पस कैलोसम। ये क्या होता है, कार्पस कैलोसम। यहाँ पे आपको ये डायग्राम आप देख सकते हैं, कार्पस कैलोसम। सो यहाँ पे ऐसा डिवाइड हुआ बोल के बताया गया ना, इसमें इन दोनों के बीच में ऐसा नर्व का ट्रैक रहता है। अभी समझो दिस इज अ नर्व ट्रैक कंप्लीटली। सो ये नर्व ट्रैक को क्या बोलते हो कार्पस कैलोसम बोल के बोला जाता है। ये क्या करता है बोलते तो ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखने के लिए, जैसा कि ये क्या है, ये दोनों तो दे आर बोथ आर डिवाइडेड बट दे आर कनेक्टेड विद व्हिच वन, कार्पस कैलोसम बोल के यहाँ पे बोला जाता है। ऐसा क्या होता तो forebrain consisting of which one, this cerebrum which is having which one divided into 2 cerebral hemispheres, and these 2 cerebral hemispheres are what it called divided by longitudinal cleft. Okay, and that particular type of cerebral hemispheres are again connected by majorly a tract of nerve fibers. bunch of nerve fiber होता है बेटा, तो उससे वो कनेक्ट होकर उसको क्या बोलते हैं तो कार्पस कैलोसम बोल के यहाँ पे बोला जा सकता है। सो लाइक दिस रिचुअल द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्पस कैलोसम विल बी यूजफुल फॉर द कनेक्टिंग ऑफ 2 cerebral hemispheres। तो ये राइट
जैसा कि ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये दोनों कनेक्ट होकर रहता है। सो ये दोनों के बीच में कैसा हो तो ये व्हाट इट कॉल्ड कार्पस कैलोसम बोल के एक स्ट्रक्चर है। ये कार्पस कैलोसम क्या है? इट इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स बोल के यहाँ पे बोला जा सकता है। ओके